ناول کا نام یارانہ، قسط نمبر 1۔ وہ لوگ اندر کیسے آئے؟ تم سب سوئے ہوئے تھے کیا یا گپے ہانک رہے تھے؟ اگر اس نے میری بیوی کو ذرا سی بھی تکلیف دی تو خمیازہ تم لوگوں کو بھی بھگتنا ہوگا۔ سر، ہم تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے۔ وہ لوگ مین گیٹ سے انٹر نہیں ہوئے۔ اگر وہاں سے آتے تو ہم پکڑ لیتے، اس کے ایک سیکیورٹی گارڈ نے کہا، جو مین گیٹ پر پہرا دیتا تھا، اور پچھلے گیٹ سے بھی نہیں آئے۔ تو کیا پھر آسمان سے اتر کر آئے وہ لوگ یا زمین میں سرنگ کھود کر؟ وہ اس وقت سخت غصے میں تھا تو اپنے گارڈز پر ہی بھڑک گیا۔ سوری سر، ہم تھوڑی دیر میں پتہ کر کے آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ تھوڑی دیر مطلب صرف 5 منٹ، اگر 1 منٹ بھی اوپر ہوا تو اپنے کفن دفن کا انتظام تیار رکھنا۔ پھر ان کو وارن کرتے وہ باہر نکلا تھا۔ وہ مصری دیوتاؤں سا حسن رکھنے والا اپنی کمال وجاہت کے ساتھ آج غصے میں اور زیادہ غضب ڈھا رہا تھا۔ اس کے غصے سے تنے نقوش، تیکھی مغرور ناک اور بھری ہنٹر آنکھیں غصہ سے لال کندھار ہو رہے تھے، جیسے کسی انار کے دانے سے رس نچوڑ کر شامل کر لیا ہو۔ بے شک وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا بیوی، میرا انتظار کرنا، ایک عزم سے کہتے وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا تھا۔ لڑکی کا خیال رکھنا، اس کو ایک خراش بھی نہیں آنی چاہیے، ورنہ تم لوگوں کی کھال اتار پھینکوں گا۔ میں تو گھنٹوں میں آ جاؤں گا، اپنے گارڈز کو ہدایت دیتے وہ مسکراتا ہوا باہر نکلا تھا۔ ماہین، جس کو پہلے ہی ہوش آ چکا تھا لیکن اس نے ابھی کوئی ہلچل نہیں کی تھی کیونکہ وہ اس شخص کے جانے کے انتظار میں تھی، اس کے جاتے ہی 5 منٹ بعد وہ اٹھتے ہوئے ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی۔ وہاں اس کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ وہ ایک بند سے کمرے میں تھی جہاں بس ایک سنگل بیڈ اور ایک صوفہ رکھا گیا تھا اور روشنی کے لیے ایک چھوٹا سا روشن دان بنا ہوا تھا جس سے ہوا کا گزر تقریباً مشکل تھا۔ یا خدا، اب کیا کروں؟ زہیر کہاں ہیں آپ؟ پلیز آ جائیں۔ وہ اپنے مجاسی خدا کو یاد کر کے رونے لگی تھی۔ وہ ایک مضبوط لڑکی تھی، لیکن تھی تو ایک لڑکی ہی، وہ مرد سے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اور اس وقت اس کو اپنے بچاؤ کے لیے تدبیر کرنی تھی، کیونکہ وہ لوگ جب اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے اسے کڈنیپ کر سکتے ہیں تو ممکن ہے کہ انہوں نے اسے کسی خفیہ جگہ رکھا ہوگا جہاں تک پہنچنے میں زہیر کے لیے مشکل ہو سکتی تھی۔ اسی سوچ کے تحت وہ اپنے ذہن میں بننے والی تدبیر پر عمل کرتے زور زور سے چلانے لگی، پلیز ہیلپ می۔ لڑکی، کیا ہوا؟ کیوں اتنا چلا رہی ہو؟ مجھے بہت پین ہو رہا ہے گلے میں۔ مجھے لگتا ہے میں مر رہی ہوں۔ وہ اپنی اداکاری کے جوہر دکھاتے ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے واقعی اسے بہت درد ہو رہا ہو۔ پلیز ہیلپ می۔ اوئے، ہم میں سے تو کسی نے تجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو گلے میں درد کیسا؟ کہیں یہ تیرا کوئی ڈرامہ تو نہیں؟ دونوں گارڈز کے مسلسل خود کو گھورنے پر ایک دفعہ تو ماہین گڑبڑا گئی، پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، ارے او موٹو پتلو کی جوڑی، اب کیا درد مجھے بتا کے ہوگا کہ میں ہونے لگا ہوں؟ تیار ہو جاؤ۔ دونوں گارڈز خود کو دیے ہوئے نام سن کر ہی شوق ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہاں، ایک صحت میں ٹھیک ٹھاک تھا اور دوسرا ذرا سلم سمارٹ تھا، لیکن موٹو پتلو، توبہ! وہ دونوں ایک ساتھ جھرجھری لے کر رہ گئے۔ اوئے ڈرامہ کوئین، ایک تو کڈنیپ ہم نے کیا اور ہم سے ڈرنے کی بجائے اوپر سے ہمیں ہی سنا رہی ہو۔ اگر باس کا آرڈر نہ ہوتا تو تمہیں ہاتھ نہ لگانے کا تو تمہاری یہ گز لمبی زبان ہی کھینچ دیتے۔ ابے او ڈھکن! ماہین بھی خالصاً انہی کی زبان میں بولی، اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا نا کہ تم لوگوں نے ایسا کرنے کا سوچا بھی تو ایسا حشر کرے گا کہ تم لوگوں کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ خیر، تم لوگوں کو پتہ تو چل ہی گیا کہ میں ڈرامہ کر رہی تھی، تو چلو جب تک میرے شوہر بلکہ تم لوگوں کے باس نہیں آتے گیم کھیلتے ہیں ہم۔ ماہین اچھے سے جانتی تھی کہ زہیر شائز کو ڈھونڈنے کے لیے زمین آسمان ایک کر دے گا، لیکن اس کے لیے اسے کچھ وقت لگے گا، اس لیے اس نے اپنے دماغ میں چلنے والی ترکیب کو سر انجام دینے کا سوچا۔ گارڈز نے بھی سوچا، اس کو دیکھ کے ہی لگ رہا تھا کہ اس نے چپ تو کرنا نہیں، تو اس سے اچھا باس کے آنے تک ٹائم بھی پاس ہو جائے گا۔ اچھا اوکے، بتاؤ کون سی گیم کھیلنی ہے؟ ماہی نے اپنے پلان پہ کام کرتے ہوئے جھٹ سے بتایا، ٹروتھ اینڈ ڈیئر۔ پھر وہ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے کچھ ہی دیر میں دونوں گارڈز کو اچھا خاصا تنگ کر چکی تھی۔ دونوں گارڈز تو دعا کر رہے تھے کہ جلدی سے باس آئے اور اس آفت کو یہاں سے لے کے جائے تاکہ وہ سکون کا سانس لے سکیں۔
पहले गार्ड का मोबाइल अचानक रिंग किया तो वो कॉल सुनने के लिए बाहर जा चुका था। माहिन के पास अब यही एक मौका था भागने का। मुझे पानी चाहिए, इसने दूसरे गार्ड को चकमा देने के लिए इससे पानी मांगा। अच्छा देता हूँ, वो गार्ड नागवारी से इसको देखते पास पड़े छोटे साइज के कूलर की तरफ मुड़ा। माहिन ने मौका पाते वहां से मुट्ठी भर मट्टी उठाई। वो जैसे ही इसको पानी देने के गर्ज से वापस मुड़ा तो इसने सारी मट्टी इसकी आंखों में डाल दी। ए लड़की, तेरी तो आंखों में मट्टी जाने की वजह से वो सही से देख भी नहीं पा रहा था। आया बड़ा माहिन शाह को किडनैप करने वाला, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। तो वही पानी का गिलास उठाते इसने इसके सर पर मारा था और वहां से भागी थी। वह बाहर निकली तो खुद को एक जंगल में पाया। वह जंगल के बीचों बीच वाकया एक मकान में थी, लेकिन इस वक्त इसे बस किसी तरह अपनी जान बचानी थी, इसलिए बगैर सोचे समझे वो एक तरफ को भागी थी। भागते भागते वो काफी दूर तक आ गई थी, लेकिन इसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल सका। शाम के साए ढल रहे थे। जंगल से जंगली जानवरों की खौफनाक आवाजें आना शुरू हो चुकी थी। वो बहुत परेशान हो गई थी कि अब किस तरफ जाए। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, प्लीज़ मेरा कोई वसीला बना दे। इस शिद्दत से ज़ुहैर शाह की याद आई। अपने दिल के मुकाम पर अपना हाथ रखते इसने शिद्दत से दिल में इसे याद किया था। ए इधर देख, इधर ही होगी। इसके कानों में इन गार्ड्स की आवाज़ गूंजी तो वो बिना आहट पैदा किए वहां से जाने लगी। जब बुरी तरह किसी चीज़ से ठोकर खाते वो मुंह के बल गिरी थी। अपनी बुलंद होने वाली चीख को वो अपने मुंह में ही दबा गई। कांच का एक टुकड़ा इसके घुटने में घुस चुका था, जिससे मुतवातर खून बह रहा था, लेकिन वो बिना परवाह किए वहां से आहिस्ता आहिस्ता चलते एक दरख्त के करीब आई थी। इसकी ओट में पनाह लेते वो आवाज़ रो दी थी। शिद्दत तकलीफ से इसके लिए चलना नामुमकिन था, इसलिए वही पनाह ले ली। वो लड़के इसको ढूंढते वहां तक आ गए थे, लेकिन इसे देखने से कासिर रहे। वो वही दरख्त के पास दुबकी रही जब तक वो लोग वहां से चले नहीं गए। अपने घुटने में होने वाली तकलीफ को नज़रअंदाज किए वो वहां से दूसरी तरफ को भागी थी। इसे इस जंगल से निकलने की उम्मीद कहीं नजर नहीं आ रही थी। शाम से रात होने वाली थी। रात का अंधेरा छा रहा था। ऊपर से जानवरों की खौफनाक आवाज़ें इसे मजीद खौफजदा कर रही थी। ज़ुहैर कहाँ हैं? प्लीज़ आ जाएं, प्लीज़ प्लीज़। आई नीड यू राइट नाउ, आई नीड यू सो मच। वो वहीं बैठते फूट फूट के रो दी थी। मेरी बीवी कहाँ है? मलिक दिलावर इसको कॉलर से पकड़े वो गुस्से से धाड़ते हुए बोला, जो अभी इसी के ऑफिस में मौजूद था। ज़ुहैर रिलैक्स, कौन सी बीवी? किस बीवी की बात कर रहे हो? तुम्हारी तो शादी मेरी शादी हो चुकी है और मेरी बीवी इस वक्त कहाँ है वो तुम जानते हो, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि अमेरिकी प्रोजेक्ट पहले तुम्हें ही मिलने वाला था। मैं ज़ुहैर शाह हूँ। मुझे पैसे से ज़्यादा अपनी फैमिली अजीज़ है और यहाँ तो बात ही मेरी बीवी की है। अगर तुम्हें प्रोजेक्ट चाहिए तो मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन मुझे मेरी बीवी सही सलामत अभी के अभी चाहिए। और अगर मेरी बीवी को ज़रा सी भी खरोच आई ना तो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हें इन्हीं पैसों के साथ दफनाऊंगा जिसके लिए तुमने ये घटिया हरकत की है। मलिक दिलावर ने इसकी पूरी बात अव्वल से आखिर तक बगैर टोके सुनी थी। वो था ही ऐसा, हमेशा से तहम्मुल मजाज, और इसी के बरक्स इसका चचेरा भाई मलिक नोरेस एक आग की माने था। गुस्सा हर वक्त इसकी नाक पर रहता था। वो जिस चीज़ के पीछे लग जाता तो इसे हासिल करके ही दम लेता, लेकिन कुछ चीज़ें लाहासिल होती हैं जिनका मिलना हर इंसान के लिए नहीं होता। मलिक दिलावर समझ चुका था कि यह हरकत किसकी है, इसलिए जल्दी से नोरेस का नंबर डायल किया था जो बंद जा रहा था। ज़ुहैर देखो, मेरी बात सुनो, ये काम मैंने नहीं किया। मैं इतना गिरा हुआ नहीं कि चंद पैसे हासिल करने की खातिर किसी औरत को इस्तेमाल करूं। तो फिर तुम अच्छे से जानते हो कि किसने किया है। मुझे मेरी बीवी किसी भी कीमत पर चाहिए मलिक दिलावर, वरना वरना क्या? ज़ुहैर शाह ब्लैक थ्री पीस पहने वह खूबरू जवान अंदर दाखिल होते धड़ा था। मलिक नोरेस, मेरी बीवी कहाँ है? ज़ुहैर गुस्से से मुठियां भींचते बोला, मेरे पास है। अगर तुम्हें तुम्हारी बीवी चाहिए तो मुझे इस प्रोजेक्ट की फाइल ला दो। इसके रूबरू खड़े होते हुए वो बोला, जैसे वो किसी खिलौने की नीलामी में वो फाइल इससे मांग रहा हो। नोरेस, इसकी बीवी कहाँ है? इसकी बीवी इसको वापस करो। ऑफिस के मामलात में घर की औरतों का दखल ना दो, मलिक दिलावर इसे समझाते हुए बोला था। अगर ये मेरी बात पहले दिन से मान लेता तो यहाँ तक नौबत ही ना आती भाई, लेकिन इसने हमसे हमारा प्रोजेक्ट छीना है और मैं अपनी चीज़ किसी और के हाथ में रहने दूँ नामुमकिन है। अभी ज़ुहैर इसे कुछ कहता जब पीछे से एक गार्ड भागता हुआ आया।
सर वो मैडम हमें चकमा देकर भाग गई और अभी वो जंगल में कहीं नहीं मिल रही। अपनी बात डरते डरते इस गार्ड ने मुकम्मल की थी। वहां खड़े वो तीनों ही हैरत ज़दा हुए थे। क्या बकवास कर रहे हो? किस जंगल में कौन सी जगह पर है मेरी बीवी? बताओ वरना ये सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। जुहेर इसके सर पर गन ताने वहशत से बोला था। आंखों के गोशे जब्त से सुर्ख पड़ गए थे। वो यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर है। तुम मुझे वहां लेकर जाओगे वरना तुम्हारी लाश इसी घर में दफना दूंगा। जज जी, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। मलिक नोरेस एक एक लफ्ज चबाते हुए इसे वार्न करती निगाहों से देखते इसी के गार्ड को लिए वहां से तेजी से निकला था। नोरेस भी इसके पीछे निकला था। दिलावर ने जल्दी से कोई नंबर डायल किया था जो पहली बेल पर ही उठा लिया। मेरी बात गौर से सुनो, नोरेस का पीछा करो, देखो वो कहाँ जाता है। इसके पहुंचते साथ मुझे इत्तला कर देना, मैं आता हूँ। कहते साथ इसने कॉल मुनक़ता कर की थी। ज़ुहैर का हाथ बेख्तियार दिल के मुकाम पर गया था, जैसे वो दुश्मन जहाँ इस शिद्दत से याद कर रही थी। या अल्लाह, इसको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखना। आप जानते हैं वो मेरे लिए क्या है? वो मेरी सांसों तक रसाई हासिल कर चुकी है। मेरे रब, वो दूर हो तो सांस भी नहीं ले पाता हूँ। अपनी महरम के लिए दुआ करते इसके दिल को कुछ हुआ था। वो गार्ड इसको एक सुनसान सी सड़क पर लाया था। सर यहीं पर है वो जंगल में। हम मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ इसे लेकर आए थे। गाड़ी से उतरते हुए इससे मुखातिब हुआ। जी आइए आप। वो इसके आगे आगे चलते इसको राह बता रहा था। दरख्तों पर निशानात लगाकर इस रास्ते की निशानदही की गई थी। वो ज़ुहैर को लिए वहाँ पहुँचा तो वहाँ सिवाय एक बुसीदा मकान के और कुछ ना था। महज जंगल ही जंगल था। गार्ड्स पूरे एतराफ़ में फैल जाओ, मुझे मेरी बीवी चाहिए किसी भी कीमत पर, वरना इसी जगह जंगली जानवरों की खुराक बना दूंगा। तुम लोगों को समझे? जी सर, आप परेशान ना हो, हम ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। ज़ुहैर खुद भी एक हाथ में गन थामे दूसरे में टार्च पकड़े इसको ढूंढने चल पड़ा था। वो थोड़ी देर तक चला तो इसके पाँव के नीचे कुछ आया। इसने पाँव उठा के देखा तो वो एक इयररिंग थी। जब इसने उठाकर देखा तो इसे माही के मिलने की एक उम्मीद नजर आई थी। वो इसी सिमत में आगे को बढ़ा था। माही, ऊंची आवाज में इसको पुकारते हुए वो इसी अंदाज में आगे बढ़ रहा था। माही प्लीज आवाज दो बीवी। वो परेशान हुआ था कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। ज़ुहैर, वो जो दरख्त की ओट में दुबकी बैठी अपने महरम की आवाज़ सुनते इसके असाब ने काम शुरू किया था। ज़ुहैर, मैं यहाँ हूँ। इसको ऊंची आवाज़ में अपने होने की आगाही देते वो अपने सारे दर्द भुलाए दरख्त के अकब से निकली थी। ज़ुहैर की नज़र जो इसके बिखरे हुलिये पर पड़ी तो वो साकित हुआ था। आज इसकी वजह से वो किस मुकाम तक पहुँच चुकी थी। इसके साथ कुछ भी हो सकता था इस बेआबाह जंगल में। माहिन जो चलने की कोशिश कर रही थी लेकिन घुटने में उठने वाली टीसों ने इसे वहीं जमा दिया हो। जैसे ज़ुहैर इसको हरकत न करते देख खुद ही इसकी तरफ लपका था। इसके करीब पहुंचते इसने इसे अपनी आगोश में लेते सख्ती से खुद में भेजा था। थैंक गॉड तुम ठीक हो बीवी, मैं तो डर ही गया था, लेकिन अब सब ठीक है, कुछ बोलो ना। इसे हिनोस चुप देखे वो दोनों हाथों से इसका चेहरा पकड़े गोया हुआ। इसकी आंखों में देखते हुए इसके मजबूत चौड़े सीने से लगते फूट फूट के रो दी थी। बस चुप चुप, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ दे रहे हैं, प्लीज चुप कर जाओ। माही इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए इसे अपनी तकलीफ बता रहा था। आप इतने लेट आए, अगर कोई जानवर मुझे खा जाता तो हिचकियों से रोते वो इससे शिकवा कर रही थी। और बीवी, आजकल के जानवर बहुत एडवांस हैं, वो ख़राब चीज़ें नहीं खाते। अपनी हंसी दबाते वो शरारत से गोया हुआ था। आप मुझे ख़राब कह रहे हैं? इसके सीने से सर निकालते वो घूरते हुए बोली। मैंने कब कहा? वो एकदम अनजान बना था। अभी अभी कहा आपने? अभी अभी क्या कहा मैंने? यही कि मैं ख़राब हूँ? नहीं मेरा बेबी, तुम तो बहुत प्यारी और मीठी हो। मीठी हूँ? आपको कैसे पता? पता है नहीं, लेकिन मैं अभी पता कर लूँ क्या? कैसे? माहिन ने नासमझी से इसे देखते हुए गोया हुई। ऐसे इसके गाल पर झुकते वो शिद्दत से वहाँ अपने दांत गाड़ किया। माही की एक सिसकी निकली थी इसके इस कदर शिद्दत से दांत गाड़ने पर। ये क्या हरकत थी? माही ने इसके यूं अचानक काटने पर हवास बाख्ता हुई थी। इसको रोमांस कहते हैं बीवी। वैसे जंगल में रोमांस करने का अलग ही मज़ा होगा। आंख विंक करते वो मैंने खेजी से बोला था। मुझे घर जाना है। अगर आपको बहुत शौक है यहाँ रात गुजारने का तो मुझे पहले घर छोड़ाएं, फिर आ जाइएगा। अगर तुम साथ रहो तो 100 साल भी इस जंगल में गुजार लूँगा। इसकी कमर में हाथ डालते इसे खुद के करीब करते वो मदहोश से लहजे में बोला, नहीं नहीं, मुझे घर जाना है।
प्लीज़ मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। क्यों, क्या हुआ घुटने को? इसके यूं बोलने पर इसके सारे जज्बात भग से उड़े थे। कांच चला गया था, आंखों में आंसू सजाए वो रूंधे हुए लहजे में बोली, तो पहले क्यों नहीं बताया? दिखाओ इधर। घुटनों के बल बैठते हुए इसकी जख्मी जगह देखने लगा जहां से खून निकलकर जम चुका था। चलो पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, बाकी काम बाद में। इसे अपनी बाहों में भरते वो लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल गया। वहां से बाहर आया तो सभी गार्ड सर झुकाए खड़े थे, क्योंकि इनको लगा था वो माहीन को ढूंढने में नाकाम हो चुके हैं, मगर अपने बॉस की बाहों में इसको देखते सब ने अपना रुख मोड़ा था। जुहेर इसको फ्रंट सीट पर निहायत आराम से बैठाते खुद ड्राइविंग सीट पर आया था। पीछे इसके गार्ड्स अपनी अपनी गाड़ियों में सवार हुए थे। वो सीधा अस्पताल के सामने रुका था। गाड़ी से उतरते माहिन को अपनी गोद में उठाते अंदर की जानी बढ़ा था। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? एक खुश मजाज सी नर्स ने इनको मुखातिब किया था। मेरी बीवी को चोट लगी है, इनका ट्रीटमेंट कर दें। जी सर, आप इनको अंदर लेकर आएं। वो इसको अंदर लाते आराम से बेड पर बिठाते इसके साथ ही बैठा था। जी कहाँ लगी है आपको? जी घुटने में लगी है। ओके कहते साथ वो फर्स्ट एड बॉक्स लिए इसके सामने आई थी। अपनी टांग ऊपर रखें प्लीज़। आप हटें यहाँ से, मैं टांग ऊपर कर लूँ। माहिन इसको घुड़ी से नवाजते आहिस्ता आवाज़ में बोली, मेरे ऊपर रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। इसकी टांग उठाते वो अपनी गोद में रखते लापरवाही से बोला। माहिन को ढेरों शर्म आई इसकी इस कदर बेपाकी पर। वो नर्स इसका जख्म साफ करते इस पर ऑइंटमेंट लगाने लगी। माहिन के मुंह से सिसकी निकली थी, क्योंकि इसके जख्म पर जलन हो रही थी। जुहेर का बाजू सख्ती से थामे वो खुद पर कंट्रोल करते इसके बाजू पर अपने नाखून गाड़ गई। दर्द हो रहा है क्या बीवी? जुहेर परेशानी से इससे पूछ रहा था। हाँ, जलन हो रही है। आंखों से बेख्तियार आंसू निकले थे। बस कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। इसकी मरहम पट्टी करवाते हुए इसे लिए वापस गाड़ी तक लाते इसे बिठाते खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठा था। वो इसे इसके घर लाते खुद अपने मैंशन की तरफ गया था, क्योंकि वो 2 दिनों से वहाँ नहीं गया। अब इसे दादी जान की डांट के साथ जिमल की नाराज़गी का सामना करना था। सलार ने कहा ख्वाक को साथ लाया और साथ ही आहल के 2 साथी भी अंदर आए थे। आहल तो इनके पास बैठ में तुम्हारी होने वाली बीवी से ज़रा मुज़ाकरात कर लूँ। दांतों की नुमाइश करते हुए इसके कमरे की जानिब गया था। दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ तो वह मासूम परी बेड पे बैठी आंसू बहा रही थी। सलार को बेख्तियार इसकी मासूमियत पर प्यार आया था। अहम अहम गुड़िया, मैं आ जाऊं? सलार ने हयात नरमी से इसे पुकारते हुए बोला। जी नहीं, आप मुझसे भी लड़ेंगे? नहीं लड़ता सची, मैं तो सुलह करने आया हूँ और तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स भी लाया हूँ। सलार इसको लालच देते बोला। सची लाए हैं? कहाँ है मेरी चॉकलेट्स? वो खड़ी होती इसको देखते हुए बोली, ऐसे नहीं मिलेगी, पहले मेरी बात मानो तो तब दूंगा। अच्छा ओके, मैं हर बात मानूंगी और अंकल के गले भी नहीं मिलूंगी। पक्का आप मुझे मेरी चॉकलेट्स ला दें? अच्छा, मैं जैसे समझाऊँ बस वैसे ही करना है। ओके, फिर मैं आपको चॉकलेट्स दे दूँगा। ओके, जैसे आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। वो मासूम इस बात से अनजान के वो जिसको अंकल बुलाती है इसी की बीवी बनने वाली है, अपनी चॉकलेट्स के लिए खुश हो रही थी। वो इसे सब कुछ समझाते हुए बाहर लाते आहल के बराबर में बिठा किया था। थोड़ी ही देर में वो इसकी महरम बन चुकी थी। अच्छा, अब मेरी चॉकलेट्स देना अंकल? वो अपनी चॉकलेट्स के लिए एक्साइटेड होते हुए बोली। हाँ क्यों नहीं, फ्रिज में पड़ी है, ले लेना। आहिल तो हैरान हुआ था कि इस नन्ही सी परी ने इसके साथ महज अपनी चॉकलेट्स लेने के लिए निकाह किया था। अच्छा आहिल, मैं चलता हूँ, अब तो एंजॉय कर अपनी बीवी के साथ। शरारत से आंख विंक करते वो वहाँ से 9-2-11 हुआ था। जरमिश जो अपनी चॉकलेट्स के साथ इंसाफ करने में मशगूल थी, इसके नन्हे से दिमाग में एक बात आई थी। अंकल सुने, इसकी तरफ रुख करते वो मासूमियत से गोया हुई। बोलो। अब तो मैं आपकी बीवी हूँ, तो अब मैं आपके गले मिल सकती हूँ ना? तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरी बीवी हो? वो इससे तफ्तीशी ऑफिसर की तरह गोया हुआ। इन लड़ाई वाले अंकल ने कहा, दांतों की नुमाइश करती हुई इससे गोया हुई। मिल सकती हो गले, क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तो क्या बाबा और भाई भी मेरे शौहर हैं? क्योंकि मैं इनको भी गले मिलती थी ना। अपने दिमाग में पलती सोच इसने आहिल के सामने रखी थी। ला हौला वला कुव्वत, लड़की क्या क्या सोचती हो? लड़की शौहर सिर्फ एक होता है और वो मैं हूँ तुम्हारा। आहिल इसको घूरते हुए बोला। अच्छा, तो आपके अलावा मेरा कोई दूसरा शौहर नहीं है? नहीं, मैं तुम्हारा इकलौता शौहर हूँ। मेरे अलावा बाकी सारे तुम्हारे भाई हैं। अच्छा ओके, फिर बाबा भी मेरे भाई हैं और भाई भी मेरे भाई हैं। अब की बार इसने नया शोशा छोड़ा था। जरमिश, दिमाग मत खाओ, सो जाओ। अब तुम्हारी आवाज़ आई ना तो देखना। आहिल इसको डांटते हुए बोला। अच्छा ना, सो रही हूँ। वो पैर पर
टखते मुंह के टेढ़े मेढ़े जाविये बनाती कमरे की जानिब चली गई। सलार घर पहुंचा तो सामने ही जोहिर की अच्छी खासी बेइज्जती हो रही थी। दादी जान से या खुदा, अब तो मेरी भी शामित आई। इससे पहले वो वहां से खिसकता जब दादी जान की आवाज़ इसके कानों में पड़ी थी। कहाँ पुत्र, इधर आओ ना जरा। जी दादी जान, आ ही रहा था। ही दांत निकालते हुए इनके पास जाके खड़ा हुआ था। कहाँ थे पूरा दिन, या तुम भी इम्पोर्टेंट मीटिंगें अटेंड कर रहे थे? दादी जान इसको घूरते हुए बोली। नहीं दादी जान, मैं तो आहिल के घर था। अपने भाई को एक नज़र देखते वो बमुश्किल बोला था। अच्छा, और आहिल के घर पर क्या कर रहे थे? जी मैं वो, हाँ, हम अपना फ्यूचर डिस्कस कर रहे थे। इससे कोई बात ना बन पाई तो झूठ बोल दिया। अच्छा, फिर क्या डिस्कस किया? यही कि मैं आपके लिए एक अच्छी सी बहू लेकर आऊँगा, और फिर आपके प्यारे प्यारे दर्जनों परपोते और परपोतियाँ होंगी, और हम मिलके। इससे पहले वो कोई और शगुफा मारता एक चप्पल सीधी इसके मुंह पर आकर लगी थी। उफ माँ, मर गया। क्या जालिम दाती हैं यार। इतना अच्छा इमेजिन कर रहा था अपनी बीवी बच्चों के साथ। अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए वो दुखी लहजे में बोला। जिमल और जोहिर बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट जब्त किए हुए थे। तुम दोनों कान खोलकर मेरी बात सुन लो। कल से तुम दोनों बिल्कुल घर से नहीं निकलोगे। 5 दिनों तक तुम दोनों का घर से निकलना मना है, समझे? अभी जाओ, सो जाओ। नींद आ रही है मुझे, वरना तुम दोनों की अच्छी खासी इज्जत अफजाई करनी थी मैंने। वो दोनों इनकी बात सुनते अपने अपने कमरों की जानिब खिसके थे। पीछे दादी जान और जिमल एक दूसरे को ताली देते मुस्कुराए थे। जारी है।